आप सुन रहे हैं माय टॉपिक with the boy on the Batmobile. So let's move to the next question. And Rishabh, आप एक राइटर हैं, तो आपको पता होगा कि आपको अब क्या करना है. तो Yes, I आपको know the अपनी drill. किताबों के you know the drill ना, तो आपको आपकी किताबों के बारे में बताना है जो आपने लिखी है. साइंस फिक्शन आपने लिखी है, आपने दो शायद आपने बुक लॉन्च करी हैं शायद, है ना? अभी recently I have launched 2 books and total मेरी हो गई 6. So there are total 6 books. Wow, amazing. तो मतलब अब आप हमें दिखा दो वो कौन सी बुक्स हैं. Yeah. दिखाओ. So I'll begin with the one that got rejected. ये failure वाली story से आई है. This is called Cricos and this is the old cover. So this has been republished है ना अभी. ये मैंने सेल्फ पब्लिश किया था. ये मेरी सबसे पहली बुक है. इट्स वेरी थिक. इसमें मैंने बहुत काम किया था. इट हैज अ होल यूनिवर्स. इट हैज अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड साइरोबियम जिसके 1000 वर्ड्स मैंने खुद से इन्वेंट किए थे उस टाइम. एंड क्वाइट नर्डी आई यूज्ड टू बी. एंड ये प्योर साइफाई. इट्स स्पेस साइफाई. इट हैज रीलॉन्च्ड विद लीड स्टार्ट पब्लिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया में कुछ 30 सिटीज में अवेलेबल है इन बुक स्टोर्स एंड Amazon और इन सब पे तो है. तो दैट्स वेरी ट्रेडिशनल. एंड इसका ऑडियो बुक भी आने वाला है वेरी सून. And which is being narrated by a Hollywood actress called Olivia Belfi. And तो मतलब काफी इस बुक की ग्रोथ हो रही है. So failure and rejection to this and I have not changed a word of it. And it is the same which got rejected at 16. It is the same which got accepted at 22. And now I'm 24 and this is like going well. फिर other than that I recently launched this book. It's called Dave. Dave is short for Department of Extra-Dimensional Vectors. It's a sci-fi inspired by the Ramayana. And इसमें रामायण के कैरेक्टर्स हैं. लॉर्ड श्री राम हैं एंड लक्ष्मण जी हैं. एवरीबडी इज देयर. बट इट इज अ साई-फाई रेंडिशन. आई वांटेड टू मिक्स क्योंकि मैं चाहता था अपनी अगली जनरेशन ना साई-फाई की बहुत वो फैन है. मैंने बोला यार आयरन मैन तेरे को बहुत मस्त लग रहा है. एंड है भी मस्त है ना. मेरे को भी लगता है, सबको लगता है ना. लेकिन यार जो अपने पुराने हीरोज थे वो भी देखो ना. अगर इंटरेस्ट वैसे नहीं पसंद आ रहा है पुराने वो क्या बोलते हैं रामानंद सागर वाले वर्जन में, तो मैं दिखा दूंगा तुम्हें अच्छे एक ऑसम वर्जन में, है ना. तो दैट इज द ऑसम वर्जन. दिस इज देव. इट इज अ रामायण रेंडिशन. इसकी वॉल्यूम 2 इज गोइंग टू बी अ महाभारत रेंडिशन इन अ साई-फाई वर्जन. सो दैट्स कॉल्ड देव बैटल ऑफ द 10 किंग्स. And then I come to my first officially published book. This was a second book, but first officially published one. ये भी self-published थी with Partridge Publication, which is a wing of Penguin Random House. Penguin Random House की एक self-publishing wing थी. I paid for this. It was a mistake paying for book publication of book. क्योंकि publishers को समझ आता है अगर book अच्छी है तो वो पैसा लगाते हैं, right? But ये self-published थी. But yeah, I don't regret it. लेकिन it's a mistake, right? New authors don't pay for your books right away. ऐसे जल्दीबाजी मत करो. Wait, है ना. There is going to be that day of illumination, है ना, जब ऐसे book तुम्हारी accept होगी या कुछ होगा. So this is a political satire. And this is that kind of book which might get me arrested someday and famous as well. So this is my JNU. I am the Kanhaiya Kumar, and this book is is actually इसके अच्छा there are 3 laws of politics here. If I just read them, you'll get the crux of the book. All written by me. I'll not say yours truly. Yours faithfully. अपना employer behavior, right? Employee behavior. A man alone is a skeptic. Put him in a group and he becomes gullible, right? Poverty is power. If the poor are with you, never let them go and never let them be rich. Law 2. Law 3. If you see a shoe shinier than yours, understand this, okay? If you see a shoe shinier than yours, then lick it. Because this will in turn bring more shine to your own shoe. So these 3 may very well be called the 3 laws of Indian politics. It's a political satire, but the crux of this book, the important point of this book is, it's not just a political satire, it's also a fantasy fiction mixed with all the universes, including Marvel Cinematic Universe, DC, and all the universes. I wanted to make it entertaining. Politics entertaining for Indian masses, people who who were on TikTok before and who used to avoid political discussion and be like, no politics, yeah, yuck. So for those people, it is important. Politics is something which runs a country. तो मेरे हिसाब से entertaining होना था. एंड इसलिए इस बुक में आई हैव मिक्स्ड ऑल दोस यूनिवर्सेस. एक बंदा है अपना सिंपल सा, उसके पास पावर है टू बिकम एनी सुपर हीरो ऑफ हिज चॉइस फॉर 1 hour. ही इज पॉलिटिकली कनेक्टेड एंड
he is the mango man, the Aam Aadmi. This is before Kejriwal ji came out with Aam Aadmi Party. So yeah, there's no trademark issue here, okay, or anything. But yeah, this was the Aam Aadmi, the mango man. I wanted to show through this book that the mango man, the Aam Aadmi, is more powerful than any Superman, Iron Man, any man out there. And so the mango man, and it is gender neutral, by the way. Mango man represents both mango men and mango women. So please don't, nobody should rush after me after telling this. Then I have started this initiative called the Voices of Silence. इसमें इंडिया के क्रॉस जितने authors है, it's a multi-author compilation. इसमें we compile stories and poems by different authors and publish every year, free of cost. This for authors who want to be, people who want to be authors, जिनकी books, जिनकी चीजें publish नहीं होती, right? So I want their content to be out there, उनको feedback मिले, वो improve भी करें and थोड़े notice भी हों. तो ये एक इनिशिएटिव है. इसके अलावा I have an autobiographical series. I don't have the copy of that, but it's called the Idiosyncrasies of Life. उसकी 2 volumes आ चुकी है. तो एक autobiography है kind of, मेरे अपने गाने, अपने poems and अपनी सारे experiences. These are all my books, all right in front of here, right in front of me on this desk. Okay, so that means अब मतलब अब तो लाइनें लगने वाली हैं. तुमने अब नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा ड्राफ्ट रेडी रख लिया है और मोस्ट प्रॉब्ली शायद तुम अब बुक्स की अब लाइन लगा दोगे, है ना? तो आई थिंक दीज आर द ग्रेट बुक्स. एंड जो मुझे सुन रहे हैं, जो ऋषभ को सुन रहे हैं, दे शुड गो and buy all these books. Even they are available on Amazon. And yeah. So currently I'll suggest that these are 2 of my latest books. They have my latest ways of writing, है ना, and थोड़ा edit भी हुई है. अच्छे publishers ने publish किए दोनों. ये Lead Start ने publish किए, Yuki Oto publication ने publish किए. Shout out to both of them. And ये book, by the way, it's registered as it's time stamped on the Ethereum server, so it is a crypto friendly book, है ना. ऐसे this content is completely unique, completely time stamped. तो मतलब you will get a very good experience reading these 2 books. This one is pretty slim. ऐसे अपना ट्रेन में पढ़ना हो, छोटे से रास्ते में ना, थाने से कुर्ला तक की ट्रेन में पढ़ सकते हैं. इसको पढ़ने के लिए थोड़ा ऐसे मुंबई से दिल्ली तक की ट्रेन लेनी पड़ेगी. तो बट या wherever you are, है ना, ऐसे मिलेगा सबको, है ना. You will enjoy these books. Go on Amazon and just buy these books, है ना. ऐसे मस्त Kindle में भी है, सब कुछ है, सारे फॉर्मेट्स में. तो मतलब टाइम पास वाली जो किताबें हैं, जो मतलब हम जैसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टाइप ऑफ किताबें, वो हमारे पास हैं. उनकी किताबें ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उनकी इमेजिनेशन में खो सकते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यार मुझे आप ये बताओ, आने वाली जनरेशन आफ्टर यू, ठीक है, एनी टिप्स, any tricks you want to give if they are writing anything, or if they are want to pursue in writing field, full time writer या part time writer, क्या होना चाहिए, step क्या होना चाहिए? मैं as a writer भी, I think it's a very important question. As a writer भी, as a creative person, artist, तो कुछ भी करना चाहते हो, मेरा simple suggestion ये है कि competitive इतना feel मत करो, है ना. क्योंकि आजकल क्या है, competition इसलिए बढ़ा है क्योंकि there is social media. We're able to see so many talents out there. हमेशा से रहें, ऐसा नहीं कि हमेशा से talent नहीं थे, but अब दिखते हैं, right? तो people have this inferiority complex. कोई artist अपनी post नहीं डालता है, उसे लगता है मुझसे better artist. ऐसा मत सोचो. Just remove all those filters. आपको अगर मन है कोई चीज करने का, एंड अगर उसमें इंप्रूव करना है, यू वांट टू रीच दैट लेवल, है ना. आपको आर्ट में MS हुसैन बनना है, आपको राइटिंग में कुछ अलग लेवल पहुंचना है, जॉर्ज R.R. मार्टिन बनना है, राइट. सो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी वो चीज, रिकर्सिवली करनी पड़ेगी, एंड वो आपको नहीं छोड़ना है. उसमें डिमोरलाइज नहीं होना है. आपको कुछ भी लगे आपसे कोई बेटर है, अरे कंपीट मत करो, बट आपको वहां तक भी पहुंचना है, उसके आगे, उसके पहले, जहां भी पहुंचना है आपको करना तो होगा, राइट. एंड सोशल मीडिया इज अ ग्रेट मीडिया. ये मीडिया ही नाम है उसका, मीडियम. इट्स अ ग्रेट मीडियम, राइट. आप पोस्ट कर सकते हो और वहां पे फीडबैक ले सकते हो, एंड नो फीडबैक इज बैड फीडबैक, आई थिंक, है ना. ऐसे लोगों ने गालियां दी है मुझे किताबों पे, मीठी मीठी एकदम स्वादिष्ट गालियां दी है ना. और मुझे वो इतनी अच्छी लगती है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज हेल्पिंग इंप्रूव. आपको इस चीज से ऑफेंसिव फील हो रहा है, पहली बात तो ऑफेंसिव फील हो रहा है मतलब पढ़ रहे हो आप, है ना. तो ऐसे आपके जैसे बहुत सारे लोग ऑफेंड होने के लिए पढ़ेंगे, तो दैट्स आल्सो देयर, बट आई विल नॉट गो डीपर इनटू दैट टेरिटरी. लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो एक्चुअल क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा क्रिटिसिज्म देते हैं, आई थिंक कंस्ट्रक्टिव भी देते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी देते हैं, बट यू कैन ऑलवेज चेंज एवरीथिंग इनटू कंस्ट्रक्टिव. आप अपने को ढाल सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, एंड उससे मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो.
So as a writer, I would say nobody is a writer and everybody is a writer. ठीक है? Nobody is born silver spoon fed or born with that ability to write the best stories, and nobody is born as completely, you know, a person who is non-creative, है ना? ये सीखनी पड़ती है. It's just आप करना चाहते हो कि नहीं, that's the most important part, है ना? आप खराब लिखते हो लेकिन आप अच्छा राइटर बनना चाहते हो. You have to practice. You have to keep writing, ना, keep scribbling. मेरी तो हैंड राइटिंग भी बहुत खराब है ना. लोग बोलते हैं तुम राइटर कैसे हो, डॉक्टर क्यों नहीं हो? आई एम लाइक कि ओके, गोइंग इनटू स्टीरियोटाइप्स, है ना. ऐसे मैंने कैलीग्राफी नहीं वो सीखी थी, मैंने लिखना सीखा है, बट दैट इज व्हाई आई टाइप, है ना. मैं लैपटॉप कैरी करता हूँ, कुछ भी लिखना होता है मैं लिख के दिखाता हूँ. तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा. एंड ऑटोग्राफ तो आई डोंट इवन गिव. मुझे अपना साइन नहीं समझ आता है. बैंक वाले आज तक परेशान है, हर बार अलग करके जाता है ना. तो मेरी राइटिंग इतनी खराब है. बट या आई से कि लिटरली आई एम फेसिंग दिस थिंग. मेरी राइटिंग तो चलो छोड़ो, रहने दो. मेरा साइन नहीं मिलता. मैं तो जब से गूगल पे एंड ऑल दीज एप्स आई ना, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ. इंटरनेट बैंकिंग रॉक्स मैन. बैंक आई डोंट नो. बैंक जाने नहीं है, कार्ड खोता है तो टेंशन हो जाती है, दूसरा कैसे निकलवाएंगे, साइन लेगा वो. एक्चुअली बहुत वो होता है, बहुत ज्यादा डर लगता है. मैं डिलीवरी वाला आता है, मैं कहता हूँ अंगूठा लगाओगे. Yeah, so these are problems I say कि मतलब to become a better writer, to become a better human being even, है ना. आपको अगर अच्छा philanthropist बनना है, लोगों के लिए अच्छा करना है, तो आप अच्छा करने की प्रैक्टिस करो ना. आप शुरू करोगे, implement it. आप राइटर बनने की प्रैक्टिस करो, लिख के पब्लिश करो. कौन मना कर रहा है? खराब चीज पब्लिश कर दो, आपको खराब फीडबैक ही मिलेगा, नहीं बिकेगा, है ना. आजकल तो सेल्फ पब्लिशिंग फोरम्स हैं. स्टार्ट ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग. तो माय ओनली टिप टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कि अपनी जनरेशन से ज्यादा टफ होने वाली है उनकी जिंदगी. बहुत इंफॉर्मेशन फ्लो, इतनी इंफॉर्मेशन ह्यूमन ब्रेन के लिए नहीं बनी, है ना. पीस नहीं है कोई, देयर इज नो मेंटल पीस. बट आप इतनी नॉइज को आप बाहर रखो. यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड उसको आप एक बड़े से बोर्ड पे, मैं तो कहूंगा एक फिजिकल बोर्ड पे लिख के चिपका दो अपने घर पे. और रोज सुबह उठ के देखो कि मुझे ये बनना है, मुझे बैलेड आंसर बनना है. ठीक है, बनना है आपको, है ना. मुझे मार्शल आर्टिस्ट बनना है, मुझे राइटर बनना है. ये सिंपल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. मेरे तो दिमाग में माइंड पैलेस तो नहीं है, शर्लॉक नहीं बन पाया अभी तक, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे बोर्ड दिखता है ना, कि हाँ आई वांट टू बी अ बेटर राइटर, है ना. एंड ऐसे दिखता है कि नॉट जस्ट कि पीपल लव माय स्टोरीज, बट ऐसे खुद तो अच्छा लगना चाहिए कि मैं आई हैव रिटन सच अ ब्यूटीफुल लाइन ना. एंड बहुत मेहनत लगी लिखने में. ओके सो गाइस, इससे बेटर टिप्स और कोई नहीं दे सकता. बस अब यही कहना चाहेंगे, बस कंपटीशन बहुत है एंड बहुत लोग हैं. That's what Rishabh is saying, that's what I am saying. अपने टाइम जोन में काम करना शुरू कर दो, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओ. ओके ऋषभ, वैसे मैं यू नो एक सेगमेंट है जिसका नाम है दिमाग पर वार. यू नो आई प्ले विद ऑलमोस्ट पीपल, यू नो अच्छे खासे लोगों से खेलता हूँ. दीज आर द जीके क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लोगों को बहुत जलील करता हूँ उसमें. तो मैं तुमसे वो खेलना शुरू हो रहा हूँ, ठीक है. यू नीड टू आंसर देम. अगर तुम आंसर नहीं भी दे पाए, वी आर नॉट गोइंग टू जज यू, बट वी आर गोइंग टू सलील यू. इट्स ओके. ओके, टाइम स्क्वायर नंगा, आई हैव नो एम्बैरेसमेंट. ओके, सो अब मैं शुरू करने वाला हूँ कॉल दिमाग पर बात. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, ठीक है. इस वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है? योर ऑप्शंस आर 5K, 4K, 45K एंड 7K. 5K, 4K, 45K, 7K. इंडिया में ही होंगी 5K तो. I'll say it's 7,000. Quite pass, but wrong. It's 5,000. 5,000 language. जो काटा वही निकला आंसर. ये मेरे MCQ में होता है मेरे हमेशा. Okay. World most expensive metal. Your options are gold, silver, thorium, uranium. Okay, rhodium any option में. Gold, silver, then the third is gold, silver, thorium, uranium. थ्योरियम. यूरेनियम तो यार ऐसे प्राइस होती है यूरेनियम का, कहीं आई थिंक बिक तो नहीं रहा है. बट द ऑप्शन 3 थ्योरियम. ओके, रॉन्ग. एंड द राइट आंसर इज
यूरेनियम, बिकॉज यूरेनियम इंडिया में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है यूएस में। जो मैंने काटा है दैट्स द आंसर। ये मेरे एमसीक्यू का जो किस्मत है ना। बट यस, आई रियली वांट टू गिव यू दिस ट्रिविया, थ्योरम केरला में पाया जाता है और तुमने उसकी बहुत तारीफ करी है। या केरला, केरला। यस, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स। ये किसने डायलॉग लिखा है? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये किस मूवी से है? ये सलमान भाई का डायलॉग लग रहा है तेरे को, पता नहीं क्यों। नो। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। शाहरुख का है क्या? आई डोंट नो। बहुत इजी है, पता, बहुत इजी है, पता। और तुमने मूवी भी देखी हुई है। और उसका जो एक्टर है, थ्री इडियट्स, आमिर खान। नो, इट्स कॉल्ड बन्ना भाई एमबीबीएस। अरे यार, राजकुमार हिरानी यार, इज सेम डायरेक्टर। एटलीस्ट गिव मी हाफ पॉइंट, है ना? सेम डायरेक्टर है ना। ओके, जस्टिन बीबर के फैंस को क्या बोलते हैं? बिलीवर्स, आई थिंक बिलीवर्स। कुछ तो सही हुआ। जस्टिन बीबर क्वेश्चन आई गॉट राइट। या ओके, यूएसए इन अच्छा वो तो हो गया ना। ओके, हाँ, नहीं ये नहीं हुआ, सॉरी। हु आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल इन द वर्ल्ड? कौन सी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग लोग पाए जाते हैं? ऑप्शन था यूएसए, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड जापान। जापान, आई थिंक जापान। Oh, nice. Correct. Okay. Which was the first university in the world? सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी थी? किस कंट्री में बनी थी या किस स्टेट में बनी थी? पारिस, इलाहाबाद, तक्षशिला एंड असम। तक्षशिला यूनिवर्सिटी है करंटली इन अफगानिस्तान, आई थिंक। तो वो वर्ल्ड की सबसे पहली थी। ओके, तक्षशिला आई थिंक इट यूज्ड टू बी इन इंडिया। It used to be in India, but अब अफगानिस्तान। तक्षशिला इज राइट, बट ये नहीं मुझे कहाँ है, क्योंकि आई एम कंफ्यूज बिटवीन बिहार एंड अफगानिस्तान। आई डोंट नो। नहीं, बिहार में नालंदा है। सो नालंदा एंड नालंदा वाज द सेकंड वन, है ना? वो पाटलिपुत्र में बनी थी। हाँ, अब याद आया। थैंक यू फॉर गिविंग मी जीके। मेरी भी कमजोर है। ओके, वेयर इज खजुराहो? ऑप्शंस आर यूपी, एमपी, एपी, पंजाब। मध्य प्रदेश। अरे वाह यार, मेरे क्वेश्चंस का तो इजी है। ओके, हु स्टार्टेड गणेश चतुर्थी इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, आई थिंक। क्या बात है, बिना ऑप्शन दिए सही है यार। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पांच सूर्य दिखते हैं? पांच सूर्य दिखते हैं। ऑप्शंस ये साईफाई क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने भी जब ये पढ़ा था तो मैं भी हैरान हो गया था, और उस जगह का भी नाम मैंने स्पेशली लिख के रखा हुआ है। ओके, द ऑप्शंस आर रशिया, जापान, इंडिया, चाइना। आई थिंक इट विल बी जापान। राइजिंग सन बोलते हैं उससे, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो रशिया, जापान, चाइना, इंडिया। जापान, आई विल गो विद जापान। पक्का? ओके, हाँ। द करेक्ट आंसर इज जापान। नहीं है। अरे इट्स चाइना। ओके। चाइना में देयर आर 5 सन्स। ओके, आई डिड नॉट नो। एक्चुअली इल्यूजन दिखता है वहां पे बिकॉज ऑफ द फॉग। वो तो उस जगह का नाम है सिंग नाइट चोंग। ओके, नहीं समझ आया, लेकिन ठीक है, आई गॉट इट। सिंग नाइट चोंग, व्हाटएवर इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आता। सिंग नाइट चोंग। तो ये वहां पे इल्यूजन दिखता है बहुत आराम से कि आपको 5 सन दिखते हैं। काफी अच्छा लगता होगा यार ऐसे, क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी में आ सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने उठाए हुए होंगे, लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मैंने ढूंढ के निकाले हैं। ओके, हाँ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी। ओके, हम करण जौहर नहीं बन सकते ना। वी कांट प्ले रैपिड फायर और समथिंग लाइक दैट। वी रियली वांट टू प्ले जिसमें आपको फील आए और आपको नॉलेज मिले। हार्दिक पांड्या हैं
तो रैपिड फायर फेल ही कर जाएंगे, तो मतलब कोई फायदा नहीं है। Actually. So, let's move to the last question of this segment. Okay. Any message you want to give to this audience from this platform? आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहिए? I want to say that failures होते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे, and आते रहने चाहिए. फेलियर्स अगर आप फेल कर रहे हो मतलब आप ट्राई कर रहे हो, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ट्राई करते रहना, कभी क्विट ना करना, है ना. और अगर बहुत ज्यादा फेलियर से परेशानी हो रही है ना, तो आप मुझसे बात कर लो यार, मैं भी अवेलेबल हूँ. आप दुनिया से बात करो, है ना. आप मैसेज करो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल. हर कोई फेल किया है. आपको लगता है शाहरुख खान फेल नहीं होगा, बहुत लोग फेल किए हैं, है ना. मतलब देयर आर अम्टी नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इट. जेफ बेजोस फेल किया होगा कभी ना कभी, है ना. कोई हमेशा सक्सीड नहीं करता. तो देयर आर And such a best example we have in our country. अमिताभ बच्चन ने 11 फिल्में फ्लॉप करी थी. एग्जैक्टली लगातार, वो भी शायद आई थिंक, है ना, बीच में उसकी लगातार फ्लॉप हुई. तो देयर आर फेलियर्स, एंड आप ये सब स्टोरीज ढूंढो. आप सिर्फ सक्सेस स्टोरीज मत ढूंढो यार, ये सब स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रायल की स्टोरीज आपको बहुत इंस्पायर करेंगी, एंड आप समझो कि एवरीबडी हैज बीन और मे बी इज राइट नाउ इन द सेम शू दैट यू आर, राइट. सो कभी अकेला मत फील करो. कभी डिप्रेशन होता है लोगों को, मैं जानता हूँ, इट्स अ बिग थिंग, एंड उससे फाइट करो, है ना. डोंट लेट इट बी, है ना. जस्ट फाइट इट. इट्स इजियर टू से देन इट्स डन, आई नो दैट. लेकिन आप गिव अप मत करो, है ना. फेलियर विल हैपन, हैज टू हैपन, एंड विल कंटिन्यू टू हैपन. जस्ट अंडरस्टैंड दैट. So guys, आपको याद होगा इलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली स्पेस शटल लॉन्च करना था और वो बहुत ड्रास्टिकली फेल्ड हुआ था, फेल हो गया. You know, Elon Musk is the one example we have. बहुत रिसेंट है, बट उनकी मेरे को बहुत अच्छी बात लगी थी. उन्होंने लिखा था, आई थिंक ही सेड मैं सक्सेस मेरे को मिल गई बिकॉज बहुत लोग तो ट्राई नहीं करते. समथिंग एक लाइन थी, बहुत लोग ट्राई नहीं करते, मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया. बट अगेन सेम टाइम आपको ये सोचना है कि आप कैसे सोचते हो और क्या अपने माइंड को किस डायरेक्शन में लेके जाते हो, वो आप पे है. वो आप पे बहुत इम्पोर्टेंट आपके साथ है कि जब तक आप नहीं सोचोगे कि मेरे को ये काम करना है या मेरे को इस चीज़ में घुसना है, तब तक कोई नहीं कर पाएगा. गॉड कैन ओनली हेल्प यू इन वन केस ओनली, जब तक आप अपनी मदद नहीं करो. दैट्स इट. आई थिंक ये मेरे को लगता है. तो येस ऋषभ, थैंक यू ब्रो. Thank you so much for this amazing conversation, and you shared your lot of experience, your failure, your books, everything. Thank you so much. मतलब आने के लिए और हमारे साथ इतना you know knowledgeable बातें करने के लिए. दिल की बातें हैं सारी. And thank you so much for having me and having that chat and that brainstorming session. Internal brainstorming करवा दिया, है ना. मैं अभी वो सिटी ढूंढ के उसके बारे में पढ़ने वाला हूँ. काफी ऑब्वियस है ना. एंड वो जहाँ पे 5 सूरज दिखते हैं, I'll be like, oh nice यार, यहाँ पे सूर्य नमस्कार करते करते इंसान थक जाए, है ना. मतलब मेरे दिमाग में ये सब ख्याल आएंगे, है ना, कि ये ओके 5 टाइम्स, है ना. तो सो यही सब सोचता हूँ मैं, है ना, तभी लिखता हूँ, है ना. यही सब लिखता हूँ. तो नहीं सर, यही सब नहीं लिखता हूँ, ऐसा नहीं, अच्छा लिखता नहीं. आप साइफाई लिखते हैं ना, तो आई थिंक ये आपके लिए 5 सूर्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि लोगों को यहाँ पे एक से दिक्कत है और लोगों को तो 5 दिखते हैं. फोटोसिंथेसिस वहाँ पे पागलों की तरह हो रहा है. वहाँ पे प्लांट्स की वो हो रही है, पार्टी हो रही है, प्रांस रेव कर रहे हैं उधर, है ना. कह रहे हैं अरे 5 है इधर. आज तो नाइट, फ्राइडे नाइट है. बिल्कुल, उसे पार्टी हो रही है, इनकी पार्टी हो रही है. So yes, so thank you ऋषभ, thank you so much. So guys, ये थे हमारे साथ ऋषभ दुबे, एंड आई थिंक आज आपको ये एपिसोड सुनकर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा होगा और बहुत नॉलेज मिली होंगी. अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, इसकी तो बहुत तगड़ी नॉलेज मिल गई होगी, है ना. तो गाइस, ये था मेरा आज का शो, और कुछ नहीं करना, बस मेरे को आपको बताना है कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा. एंड यू कैन फॉलो ऋषभ ऑल्सो. ऋषभ, आपका जो इंस्टाग्राम आईडी आप प्लीज़ हमें बताएं, इफ किसी ने आपको कॉन्टैक्ट. Instagram ID is Critias, and you can just follow me on Instagram with this.
And you can also tune in to buy my merchandise. It's available. It's called Critias. This is Critias merchandise. And ऐसे हर जगह salesman attitude रखने का, है ना? But yeah, these are awesome t-shirts, masks and everything available at Redesign. And this is my Instagram profile. It's Critias. And you can go on to Critias and you can follow me. You can follow me for variety of content, for music, for books, for a lot more, I think. Exactly. तो ये था. अच्छा, you are going to sing a song for us ना? ये कहाँ रह गया? Sorry, I hold. अभी मैं शो एंड नहीं करने वाला. Wait, he's going to sing for us. Come on, start. इतनी जल्दी मैं बाय बाय कर रहा हूँ. क्या हो गया मुझे? You can hear the guitars. So I'll play a song called Aftab. Aftab means sun, by the way. So we were talking about suns. It's a song which motivates me. अपने जो dark moments होते हैं ना, उसमें motivate करता है, अच्छा लगता है. Shout out to the local train. I recently won one of their giveaways, and I won this awesome diary. उनका best fan मैं declare हुआ across India. So I won this giveaway with this song, and I played it at 18,000 feet at Kheer Ganga abhi recently. So it's a song very close to my heart. खामोश भीड़ में फिर हो खड़े गुमशुदा मौजूद हो यहाँ या गुम कहीं किसको पता जब लगे हर घड़ी के अब इस रात की ना है सुबह कोई कर यकीन देख तू के आफताब वो हंसी है छुपाए ही कहीं चेहरे में तेरे बंद वो कितने सवाल पूछते खुशी का पता बाकी अभी इम्तिहान है अगर राह गुजर पर गहरा अंधेरा मोहताब सो चुका कर यकीन देख तू के आफताब वो हंसी है छुपाए ही कहीं कहीं दूर शोर से एक नया दौर है मोहताज ना किसी के ना पूछे कोई तेरा नाम ही ले जहां बस खुशी फलसफा बस यही तो कर यकीन वो है अगर राह गुजर पर गहरा अंधेरा मोहताब सो चुका कर यकीन देख तू के आफताब वो हंसी है छुपाए ही कहीं. Wow, what an amazing song. Yeah, this is also Critias, so branding everywhere. वो मैं वही चीज देख रहा था. वाओ, अमेजिंग मैन. बहुत बहुत सही, बहुत सही. Thank you so much. Shout out to the local train जिनका ये गाना है. It's an amazing song. I love it so much. I listen to it before going to sleep every day. And it actually helps me with the next day. है ना? कि आप सोने जा रहे हो अभी, but the next day there's always going to be a सूरज. है ना? It's always going to be a sun. Nothing can stop it. आफ्ताब वो हंसी है छुपा यही कहीं. मतलब the light is there. You just have to find it. So again, failures. It's a song that never stick to failures. Keep repeating failures and move towards success. So that's it. Okay, so finally we can move to our end. So thank you so much for songs. Thank you so much for talk, conversation जो आप कहें. Thank you so much. And so guys, ये था मेरा आज का शो. And I hope आपको पसंद आया होगा. And just follow us. Follow me, the boy on Batmobile, and you can follow Critias. Okay, Critias. You can follow Rishabh Dubey, Critias. उनका Instagram ID है, and मेरा तो आपको पता ही है, the boy on Batmobile. And yeah, so thank you so much. And सबसे important क्या करना है, ध्यान रखना है और दुआ में याद रखना है. बिल्कुल. So please take care and bye bye.